Friends, my name is Naveen and welcome to our YouTube channel. So in our previous video, we have learned at how to install the NumPy module in the Python, right? So in this tutorial, we will learn at how to import the NumPy module, right? So to import the NumPy module in Python, we will write import NumPy as NP, right? So first of all, we will learn that what is the meaning of this line, that why we write this particular line, right? So सबसे पहले the meaning of import, right? Import means whenever you want to import any of the library in the Python, there we use import keyword. So just like in C and C++, there we need to import or there we need to add some external header file, right? So in the case of Python, whenever you want to import or add any external library or any external module, so there we use import keyword, राइट तो इंपोर्ट कीवर्ड का यूज हम कहाँ पे करेंगे जब मुझे इंपोर्ट करना है किसी एक्सटर्नल मॉड्यूल को, राइट तो जैसे आपने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डेट हाउ वी कैन इंपोर्ट दी मैथ मॉड्यूल, राइट सो इंपोर्ट numpy means we are going to import an external module, right? So now next two words as np, what does that means? So that means here we are creating np as a alias of the numpy. So in this line I have make np as a alias of numpy, right? Why alias? So first of all let me write it here. Here this np is nothing but you can use any word here. np की बजाय आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, np xyz abc कुछ भी, क्योंकि numpy वो n मीन्स num और p मीन्स पाई, तो मैंने ऐसा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं. सो हियर np इज एन alias numpy, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसका एक alias क्रिएट कर लिया, किसका? numpy का. Now so this alias name would help me to use all the inbuilt function of numpy module, राइट? तो अब मेरे पास जितने भी इनबिल्ट फंक्शन है इसकी numpy मॉड्यूल मैंने ऐड कर लिया. सो दिस numpy मॉड्यूल इज हैविंग n नंबर ऑफ इनबिल्ट फंक्शन. अब उन इनबिल्ट फंक्शन को अगर मुझे एक्सेस करना है, सो आई कैन एक्सेस ऑल द इनबिल्ट फंक्शंस ऑफ numpy मॉड्यूल through the alias of the numpy. So what is the name of the alias? In this case it is np. In your case it may be differ. आप np की बजाय कुछ भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो अगर मुझे किसी भी मॉड्यूल को यूज करना है, लेट्स से मैं करता हूं np डॉट, तो डॉट के साथ मैं जितने भी मॉड्यूल है यूज करूंगा, एंड लेट्स से वन ऑफ द फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूल इज अरेंज. तो इस तरह से आप उनके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं. np is a name of alias name of the numpy module. Dot operator will help me to access the function of that module. जैसे मैंने बोला कि एक फंक्शन का नाम है अरेंज, अरेंज फंक्शन को एक्सेस करना है तो इस तरह से डी टाइप फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को अगर मुझे एक्सेस करना है वो मैं इस तरह से एक्सेस कर पाऊंगा, राइट? इतना क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं कि मैंने आपको बोला था कि numpy का यूज कहाँ पे होता है. वीडियो में हमने कवर किया था कि numpy will help you to create the arrays which were not in the case of python. तो python में हमारे पास क्या है? लिस्ट. and here we use arrays. We are going to make a one dimensional array with the help of inbuilt function of the numpy module, and we know that how to use the inbuilt functions of the numpy module, right? So उसके लिए मैं क्या करूंगा, let's say I'm going to make a one dimensional array. तो one dimensional array के लिए we have a function known as arrange. So here I will write np dot arrange. It's a function, so I need to pass a value to this function. Let's say I have passed a 10 value to this function. Now this function np dot arrange will return me a array with values from 0 to 9. ठीक है, तो ये अपने आप मुझे एक एरे रिटर्न करेगा और वैल्यूज में क्या होंगी, इट विल फिल द वैल्यूज ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 10-1. टोटल 10 वैल्यूज होंगी उसमें, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करेंगे तो हम 0 से लेकर 9 तक, राइट? सो आई एम गोइंग टू असाइन दिस एरे. So here I'm assigning this array which is returned by the arrange function with the 10 values. So here I'm going to
assign this to any of the variable. Let's say name of the variable is my ARR. तो मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, राइट। आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने चलो नाम चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने ले लिया ARR1, राइट। सो ARR1 इज इक्वल टू np डॉट अरेंज। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये मुझे क्या करेगा, एक एरे क्रिएट करेगा। np डॉट अरेंज फंक्शन विल हेल्प मी टू क्रिएट ए एरे एंड हाउ मेनी वैल्यूज, विद वैल्यूज ऑफ 10। और वो 10 वैल्यूज क्या होंगी, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to 9, 0 से 9 तक वैल्यूज होंगी उसके अंदर, एरे के अंदर। और वो क्या करेगा, ये जो एरे बनेगा मेरे पास, इस एरे को इट इज आई एम असाइनिंग टू ARR1 वेरिएबल। इट्स अ वेरिएबल टेकन बाय मी। इस वेरिएबल को मैंने ये वैल्यूज असाइन कर दी, राइट। नाउ हियर आई एम गोइंग टू प्रिंट द एरे। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, इट्स ARR1, राइट। ARR1 को अगर मैं प्रिंट करता हूं, ये मुझे 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज को प्रिंट करके देगा, राइट। दिस कोड विल रन ओनली इफ यू हैव properly install the numpy module। अगर आपने numpy module को इंस्टॉल कर लिया है, then only you will be able to use the inbuilt function of numpy, जो मैंने यहाँ पे किया np.arrange import numpy। अदरवाइज इसी लाइन पे एरर आ जाएगी। अगर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है numpy module, तो पहली लाइन में एरर आ जाएगी। So before that, make it sure the numpy module is properly installed, right? So that I have already covered in my previous video, right? So there you can see this is the output of the array, right? So here I print the ARR1। तो ARR1 के अंदर मैंने क्या बोली थी आपको कि ये वैल्यू फिल कर देगा from 0 to 9। So there you can see the array is filled with the 10 values from 0 to 9। So it's the inbuilt function of the numpy module, right? So here I'm going to make some changes कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। Let's say मेरे array का नाम है ARR1। So it's a one dimensional array, right? And here I'm going to make one more array। So let's say name of the array is ARR2 is equals to, now I'm going to make some modification with the array। So it's a one dimensional array, तो इसी one dimensional array को मैं two dimensional array में भी convert कर सकता हूँ, right? So here for that I'm going to use another inbuilt function of the numpy module। ठीक है, तो मेरे पास जो फंक्शन वन डायमेंशनल एरे ने रिटर्न किया था, वो ARR1 के अंदर आया। ARR1 के अंदर वन डायमेंशनल एरे पड़ा हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द टू डायमेंशनल एरे विद द हेल्प ऑफ ए इनबिल्ट फंक्शन, राइट। तो अनदर इनबिल्ट फंक्शन मेरे पास जो है जिसका मैं यूज करूंगा, सो आई विल राइट ARR1। ARR1 is a one dimensional array, right, which is returned by the arrange function। So here I'm going to write dot reshape, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रीशेप मींस रीशेप फंक्शन इज यूज्ड टू रीशेप द एरे। तो मेरे पास प्रीवियसली एरे जो था ARR1 के अंदर क्या पड़ा हुआ था, वन डायमेंशनल। तो मैं इसे कर रहा हूँ टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे के लिए मुझे डायमेंशंस बतानी पड़ेंगी रोज और कॉलम की फॉर्म में। सो टू डायमेंशनल एरे क्या होता है आपका, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द वन डायमेंशनल एरे विच इज ARR1 with the help of a reshape function into two dimensional array। और टू डायमेंशनल एरे की मैंने यहाँ पे डायमेंशन पास कर दी 3x3। सो इट विल क्रिएट अ मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स। तो 3x3 मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो 3x3 मैट्रिक्स मेरे पास क्या होगी, ये, राइट। दैट मीन्स 3 कॉलम एंड 3 रोज। सो टू डायमेंशनल एरे इज नथिंग बट अ मैट्रिक्स, राइट। उस मैट्रिक्स के अंदर मेरे पास क्या होंगी, 3 रो एंड 3 कॉलम। दिस इज 3x3, राइट। तो 3x3 में कन्वर्ट कर देगा। तो 3x3 में मेरे पास ये जो मेरे पास एरे np.arrange10, so it cannot be converted into 3x3। so for that make it sure कि उसका साइज ऐसा हो कि 3x3 में कन्वर्ट हो सके। so if I make it 9, तो 9 can be easily converted into a 3x3 array, right। तो अब मेरा जो ये 3x3 array बन के आएगा with 9 values, वो कुछ ऐसा होगा 0 1 2 then here 3 4 5 एंड देन 6 7 एंड 8। तो 0 से लेके 9 तक वैल्यू वो 3 रो 3 कॉलम में हो जाएंगी, राइट। सो वेयर दीज आर द कॉलम, ठीक है, एंड दीज आर द रोज। ये रो 0, रो 1 एंड दिस इज रो 2, ठीक है। और 0 बाई 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 0 0 1 पे 1 0 2 पे 2 1 0 पे 3 1 1 पे 4 and at 1 2 I have 5। this is the row 2 column 0 6,
row 2 column 1 7 and at 2 by 2 I have 8. Row 2 column 2 I have 8. So this is how it will return you a two-dimensional array with the given dimension, right? Now if I print both of the arrays, मैंने दोनों array को print करता हूँ, print arr1 and arr2. तो arr1 is a one-dimensional array where arr2 is a two-dimensional array. So here it will return me both the arrays, one-dimensional as well as two-dimensional array, right? So there you can see. पहले मुझे इसने क्या किया, कन्वर्ट, पहले इसने किया ये मेरे पास ऊपर वाला, राइट? तो ये जो था प्रिंट arr1, दिस इज वन डायमेंशनल एरे, और arr2 ने ये मुझे टू डायमेंशनल एरे दिया. तो पहली रो 0 1 2, then 3 4 5 6 7 8, right? So with the help of the inbuilt function you can make the you can use the inbuilt function to make a one dimensional array or two dimensional array, right? तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि how to make a one dimensional or two dimensional array with the help of a inbuilt function, right? Some other features are also there which we can use, like अगर मैं कहता हूँ कि arr जो array बन के आया मेरे पास arr2, ठीक है, इसका साइज क्या है या फिर इसकी डायमेंशंस क्या है या इसकी शेप क्या है या डेटा टाइप क्या है. So let us use all of them. So here I'm going to print the data type, right? So data type of the array, right? या array2 मैं ले लेता हूँ, arr2 की हम बात करते हैं is, right? For that you can use the another dynamic variable to print the data type of the array2, arr2, right? So what is a dynamic variable? So dynamic variable जो है वो आपके यूज होते हैं ऑब्जेक्ट के साथ. Now here arr1 and arr2 are the objects of the one dimensional and two dimensional array, right? So here I can write arr2 dot d type. So d type क्या मुझे रिटर्न करेगा, डेटा टाइप. सो d type means डेटा टाइप. तो डेटा टाइप मुझे इसका प्रिंट होके आ जाएगा यहाँ पे. इन द सेम वे आई कैन आल्सो यूज प्रिंट, आई कैन आल्सो प्रिंट द साइज ऑफ द एरे, राइट? ठीक है, तो मैं इसके लिए लिखूंगा यहाँ पे साइज द arr2 is, राइट? तो उसके लिए arr2 dot size. So remember it is not a function, इसके साथ आपकी parenthesis नहीं आएगी, right? उसके अलावा मैं और क्या यूज कर सकता हूँ, here I can also use the dimensions, right? तो उसके लिए मैं लिखूंगा my dimensions the arr2 are, right? comma arr2 dot ending, right? In the same way I can also print the shape कि वो उसकी shape क्या है, right? So print one dimensional or two dimensional, right? So here I will write shape the arr2 is, comma arr2 dot shape, right? So let us run the code. Invalid syntax. So let me check it here. Yes, comma is missing. Now I'm going to run the code again. So here you can see the first line. पहले सबसे पहले मैंने array1 प्रिंट किया था, ठीक है? उसके बाद ये array2 आ रहा है, राइट? उसके बाद प्रिंट डेटा टाइप. डेटा टाइप के लिए आपके पास ये आ गया यहाँ पे डेटा टाइप int 32. अब int 32 का मतलब क्या है? int 32 मीन्स 4 बाइट. सो int 32 मीन्स 4 बाइट. तो मेरे पास ये जो बाय डिफॉल्ट एरे रिटर्न किया मैंने, जो यहाँ पे अरेंज फंक्शन के थ्रू एरे क्रिएट किया था, सो अरेंज फंक्शन विल क्रिएट अ 4 बाइट एरे, इंटीजर एरे ऑलवेज. तो अरेंज फंक्शन के साथ जो भी मेरा एरे बनेगा, क्योंकि मैं इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहा हूँ, मैंने खुद नहीं एरे क्रिएट किया, हम अपना खुद भी बनाएंगे, बट दिस एरे आई हैव क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ए इनबिल्ट फंक्शन अरेंज. और ये जो अरेंज फंक्शन है ये हमेशा मुझे इंटीजर एरे देगा, दोनों वैल्यू, राइट? उसके बाद साइज ऑफ द
ARR2 इज 9, तो 9 वैल्यू है उसके अंदर, तो उसका साइज ये आ गया। फिर डायमेंशंस ऑफ द ARR2 आर 2, उसकी डायमेंशन 2 डायमेंशनल एरे है, तो उसने मुझे बोल दिया इट्स ए 2 डायमेंशनल एरे with 9 values, this is a data type and here the shape of the array 3 by 3। ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया इस सब के लिए, मैंने इन सब के लिए क्या किया, मैंने इनके लिए इनबिल्ट, मैंने आपको बोले थे डायनेमिक वेरिएबल, राइट, इनबिल्ट डायनेमिक वेरिएबल, राइट। सो लेट मी शो यू अगेन नेम ऑफ द दोस डायनेमिक वेरिएबल। सो दीज आर द डायनेमिक वेरिएबल जो मैंने यूज किए। सबसे पहला डी टाइप, दूसरा साइज, तीसरा एंडिंग एंड फोर्थ इज शेप, राइट। और ये फंक्शन नहीं है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा, हाउ टू यूज द अरेंज फंक्शन, हाउ टू यूज द रीशेप फंक्शन, राइट। अरेंज फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ वन डायमेंशनल एरे, राइट। उसके बाद रीशेप यूज किया मैंने वन डायमेंशनल एरे की शेप को चेंज करने के लिए, मैंने उसे टू डायमेंशनल एरे बना दिया, वेयर आई हैव गिवन दी, आई हैव मेंशन दी साइज, कि वो टू डायमेंशनल जो बन के आएगी मैट्रिक्स, उसका साइज क्या होगा 3 by 3, राइट। उसके बाद मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, here I use the dynamic variable, right? So that's all from my side. In case you have any doubts or queries, you can mention your doubts or query in the comment section, right? So thank you student, thank you for watching my video.